Welcome students, we have moved to video number 2 of week 8 and in this we will study business markets, and in previous video we had studied the difference between consumer and business market. We had studied the difference in very in detail. Now we will discuss the other topics, and this is about market structure and market demand. Okay, as we have already studied that in business market buyers are very few, but they are larger buyers. Their purchase volume is high. Number 2, now the topic which we will discuss right now is derived demand. So students, business demand is derived demand. Derived demand किसको कहते हैं students? Derived demand means the demand that comes from the demand of consumers. Derived demands means the demand that comes from the demand of consumers. ओके, मीन्स कि जब कंज्यूमर्स की डिमांड में इजाफा होगा तो बिजनेस की डिमांड में भी इजाफा होगा. कंज्यूमर्स की डिमांड में कमी होगी तो बिजनेस की डिमांड में भी कमी होगी. इसे हम कहते हैं डिराइव डिमांड. डिराइव डिमांड मीन्स बिजनेस डिमांड इज बेसिकली derived from the demand of the consumer. For example, पेप्सी जो है, अगर कंज्यूमर विंटर के अंदर नहीं खरीदेगा तो रिटेलर जो है वो भी पेप्सी अपनी शॉप पे बहुत ज्यादा तादाद में नहीं लेके आएगा और नहीं खरीदेगा. जब विंटर में कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, कस्टमर की डिमांड अगर कम हो जाएगी तो फिर रिटेलर भी अपने लिए डिमांड जो है उसको कम कर लेगा. दिस इज कॉल्ड derived demand which comes from the demand of consumer. So next we will discuss inelastic demand and fluctuating demand, but we will discuss this in next slide. So close supplier customer relationship, so we will discuss this later. But first we will discuss derived demand. What is derived demand? That I have already told you that derived demand means this is the demand that comes from the demand of consumer. Okay, consumer goods. And in this we have two types of demand. Number 1, inelastic demand, and number 2, we have fluctuating demand. Student, there is a word used in economics which is called elasticity, or something which is इलास्टिक. इलास्टिक को हम उर्दू में कहते हैं लचक. लचक मीन जिसमें कमी या बेशी हो सकती है, जो एक्सटेंड भी हो सकती है, जो शॉर्ट भी हो सकती है. ओके जी, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. सो दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी को एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इलास्टिक को, उसको हम लोग कहते हैं फ्लक्चुएटिंग. फ्लक्चुएट किसे कहते हैं? जो तब्दील हो सकती हो, जो चेंज हो सकती हो. ऑन दी अदर हैंड, इसी का जब हम उल्ट करते हैं तो एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इनइलास्टिक. व्हाट इज
what is inelastic? What is inelastic? Inelastic means ऐसी चीज जिसके अंदर लचक नहीं होती। लचक से मुराद जिसके अंदर कमी या ज्यादती नहीं होती, जिसके अंदर चेंजेस नहीं आती, ठीक है, जिसमें कमी बेशी नहीं होती। So when we talk about inelastic demand, inelastic demand means that is the total demand of many business products is not much affected, okay, normally not affected by the price, not affected by the price। मिसाल के तौर पे let me give you an example that when the price of any product increases, it results in the demand, it results as the demand of the product decreases। Same is the case when the price of a product decreases, then demand of the product will increase, okay। So sometimes this is called elastic demand, but we are studying inelastic demand। inelastic demand से मुराद गैर लचकदार डिमांड। गैर लचकदार डिमांड मीन्स कि ये वो डिमांड होती है जिसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही, यानी कि अगर प्राइस में चेंजेस आ भी रही हैं, प्राइस में चेंजेस आ भी रही हैं, तब भी हमारी डिमांड में कमी या ज्यादा नहीं हो रही। प्राइस कम हो रही है, हमारी डिमांड ज्यादा नहीं हो रही, प्राइस ज्यादा हो रही है, हमारी डिमांड कम नहीं हो रही, ठीक है। And example is the leather example। A drop in the price of leather will not cause shoe manufacturer to buy much more leather। अब कोई कंपनी है जो शूज बनाती है, और अगर लेदर के जो शूज बनाती है और अगर लेदर की प्राइस में कमी हो जाती है, तो भी एक लेदर बनाने वाली कंपनी, शूज बनाने वाली कंपनी लेदर की परचेज में इजाफा नहीं करेगी। वो इसलिए नहीं करेगी कि वो जब शूज बना लेगी तो शूज बनाने के बाद कंज्यूमर्स उसके पास शूज खरीदने के लिए इस सीजन में नहीं आ रहे। जब कंज्यूमर्स ने शूज ही नहीं उससे खरीदने, तो वो लेदर खरीद कर शूज बनाने की बेवकूफ़ी नहीं करेगा। सो इट मीन्स प्राइस चाहे कम कर दिया आपने, लेकिन वो कम प्राइस करने के बावजूद कस्टमर और बिजनेस विल नॉट go to purchase your product, and and the and the elasticity of and the elasticity or your demand will not increase or your demand will not decrease। it means your demand of the product will remain इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मीन गैर लचकदार। गैर लचकदार से मुराद जिसकी में किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसी की वैसी रहेगी और उसके अंदर तब्दीली नहीं आएगी। ठीक हो गया। नंबर 2, जैसे मैंने बताया था दो किस्म की डिमांड होती हैं, एक होती है इलास्टिक, एक होती है इनइलास्टिक। और जो इलास्टिक होता है उसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग भी कहते हैं, ओके। इलास्टिक डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग। द डिमांड फॉर मेनी बिजनेस गुड्स एंड सर्विस tends to change and more quickly। ये वो डिमांड्स होती हैं जिसमें अगर प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है तो डिमांड बहुत ज्यादा तादाद में कम हो जाती है, या प्राइस में थोड़ा सी कमी आती है तो डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। ये भी हो सकता है। और दूसरे नंबर पे इलास्टिक या फ्लक्चुएटिंग डिमांड को हम यूं भी देखते हैं कि अगर कंज्यूमर डिमांड जो है उसमें थोड़ा सा इजाफा होता है तो उसके रिजल्ट में जो बिजनेस डिमांड है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है। मीन्स कि अ माइनर चेंज इन द डिमांड ऑफ कंज्यूमर मार्केट विल कॉज ह्यूज डिफरेंस इन द डिमांड ऑफ business per in the demand of business purchase, okay। The demand for many business goods and services tend to change more and more quickly than the demand of consumer goods and services shoes and services। It means कि कंज्यूमर में बहुत कम चेंजेस आएंगी, लेकिन इस कम चेंज के नतीजे में बिजनेस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगी। मैं एग्जांपल देता हूं एक, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। जी, अगर हम पेप्सी की एग्जांपल जो कि मैंने पहले भी दी थी, और अगर मैं एक स्टोर में जाके एक पेप्सी खरीदूंगा
ठीक है, मैं एक कंज्यूमर हूं, इसी तरीके से एक और कंज्यूमर होगा, वो भी एक पेप्सी खरीदेगा, एक और कंज्यूमर होगा, वो भी एक खरीदेगा, कोई दो खरीदेंगे, कोई एक खरीदेगा, फिर कोई दो खरीदेंगे। तो जब इतना ज्यादा कंज्यूमर्स तो एक चीज परचेज कर रहे हैं ना, कंज्यूमर मार्केट में एक चेंज आया कि मैं गया मार्केट में और मैंने कहा कि मैंने परचेज करना है। कंज्यूमर मार्केट के अंदर थोड़ा सा चेंज आने से वो स्टोर वाला क्या करेगा, वो कॉटन के कॉटन लेके अपने पास रख लेगा। ठीक हो गया। और जब वो कॉटन के कॉटन ले लेगा तो जहां से वो खरीदेगा, ये अगर रिटेलर है तो इसको होलसेलर देगा, तो वो जो होलसेलर होगा वो बड़े बड़े जो कॉटन के कॉटन होंगे वो भी खरीद के अपने पास रख लेगा। इट मींस कि कंज्यूमर मार्केट में जरा सी चेंज आई तो बिजनेस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई और बहुत ही ज्यादा डिमांड जो है उसमें तब्दीली आ गई। तो इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे यूं भी पढ़ते हैं कि जनाब, when there is a change in consumer market for 10%, this results in an increase by 200% in business market. 10% कंज्यूमर मार्केट में अगर इजाफा होता है तो इट रिजल्ट्स इन 200% इजाफा इन business market. So we can say that buyer and seller are often much more dependent on each other. So B2B marketers are basically are basically the market which depends on consumer market at very large extent. So the topic which was very much important here till here was to understand the elasticity and inelasticity of the uh, business demand. So as we have seen that the demand of business market is not self made demand by the business. The demand of business market depends on the demand of the consumers, and if there is change in the demand of the consumers, there will a sufficient change will be in the demand of business market. And if there isn't any change in the demand of the consumers, then business demand will not change to a very large extent. And we have studied in elastic demand that price, if you change the price of the product, then even then your demand will not increase or will not decrease unless there is a change in the demand of consumer. So till here we have studied that there is difference between consumer and business market, and then we tried to start we started the demand of business market. And in demand of business market we have studied that demand of business market is basically derived demand, and derived demand means this demand is a demand that ultimately comes from the demand of consumers. So now students, we will move to an example. And in example there is a table. See, sorry, this is a graph. See here that in y-axis it is price per pound, or here the pounds or the weight. If the price is 1 pound, then the purchase is 12. Price is $1 per pound, then the demand is 12 pounds or apple. And if the price is increased to $2 per pound, then the demand will decrease to 5 pounds apple. So हम पाउंड्स को केजी में ले लेते हैं। अगर ₹1 प्राइस होगी तो 12 केजी परचेज करेंगी, और अगर परचेज होगी, और अगर ₹2 डॉलर कर देंगे, डॉलर में सॉरी ₹2 की हम लोग 1 केजी कर देंगे, तो फिर सिर्फ 5 केजी ही परचेज होगा। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है डिमांड और
डिमांड में और प्राइस में, और कंज्यूमर की डिमांड में और बिजनेस की डिमांड में। ये जो है ये इनइलास्टिक डिमांड है। इनइलास्टिक डिमांड से क्या होता है कि प्राइस चाहे आप 1 रुपया रखें, प्राइस चाहे 2 रुपये रखें, 1 रुपया रखें, 2 रुपये रखें, 3 रखें, प्राइस चाहे 10 रुपये रखें, आपकी डिमांड जो है वो एक ही जगह पे है, उसके अंदर किसी किस्म की चेंजेस नहीं आएंगी। प्राइस 10 रुपये होगी तब भी आपकी डिमांड जो है वो 50 है, और प्राइस 1 रुपये होगी तब भी आपकी डिमांड जो है वो 50 है। आपकी डिमांड में चेंजेस नहीं हो रही, ठीक है। तो इलास्टिसिटी so change in price is equal to difference in डिमांड जीरो। तो वही परचेज डिमांड रहेगी जो हमारी ऑलरेडी है, उसमें चेंजेस नहीं आएंगी। चेंजेस क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि ये जो हमारी डिमांड है ये हमारी इलास्टिक डिमांड है, और वी हैव स्टडीड द इलास्टिक डिमांड इन previous classes. So here this is called फ्लक्चुएटिंग डिमांड। फ्लक्चुएटिंग डिमांड क्या होती है? जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है। अगर हमारी कंज्यूमर डिमांड के अंदर 10% इंक्रीज होता है, अगर कंज्यूमर प्राइस के अंदर 10% इंक्रीज होता है, तो उसके रिजल्ट में जो बिजनेस डिमांड है उसके अंदर कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा? 200% इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर कंज्यूमर डिमांड 10% डिक्रीज हो जाएगा तो बिजनेस सारा का सारा कोलैप्स कर जाएगा और बिल्कुल बैठ जाएगा। कंज्यूमर जब खरीदेगा नहीं, बिजनेस जो है वो फिर बिल्कुल बैठ जाएगा। अगर जरा सा माइनर सा चेंज आएगा, इवन चेंज बेशक 10% ही डिक्रीज क्यों ना हो, वो बिजनेस जो मार्केट होगी वो सारी की सारी बैठ जाएगी और वो आगे नहीं चल सकेगी। ठीक है जी। उसके बाद फिर आगे एक टॉपिक हमारा आता है डायरेक्ट परचेजिंग की। डायरेक्ट परचेजिंग में क्या होता है? डायरेक्ट परचेजिंग में क्या होता है? जैसे हमने कहा था कि पहले प्रोडक्ट जो होती है वो कंपनी में आती है, कंपनी के बाद एजेंट के पास जाती है, एजेंट के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आपके बिजनेस के पास जाती है जो आपका कस्टमर होता है। तो कभी कभी क्या होता है, बिजनेसमैन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं कंपनी से, या कंपनी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करती है बिजनेस से यानी कि अपने कस्टमर से, और ये जो बीच वाले इंटरमीडिएट्स हैं इनका रोल खत्म हो जाता है, इनको हम लोग काट देते हैं, और उसके बाद इन्हीं को डायरेक्टली जब लोग पहुंचते हैं विदाउट एनी इंटरमीडियरी और विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी ब्रोकर, तो उससे फायदा ये होगा कि बिजनेस जो है उसको जरा सस्ती प्रोडक्ट मिल जाएगी, और कंपनी को भी ये फायदा होगा कि उसको टाइमली उनकी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स तक पहुंच जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम जाया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये म्यूचुअली दोनों के लिए फायदा होता है, और ये वही चैनल है जो हम लोगों ने चैनल नंबर 4 पढ़ा था जब हम लोग चैनल्स पढ़ रहे थे, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर। लेकिन बिजनेस टू कंज्यूमर की एग्जांपल नहीं है ये दिस एग्जांपल इज अबाउट बिजनेस टू बिजनेस, where business or where the business or the customers they directly contact the company and they purchase the product from company directly without engaging the agents or without engaging any distributor or industrial distributor in the purchase process, so they both can be benefited. This process is something that can benefit the both company and the business. Company, because it can sell the products very fastly and the business or the customer to get the product in lower price. Next we have summary of the product. So students, we will wait here for some time because our video is going to close, and in next video we will summarize this topic and we will move to the next topic. Okay, we will wait for 5 seconds, and after 5 to 10 seconds our video will be finished, and we will continue with this topic in third video of this week.